Okay, so let's start our today's topics. Actually, the extension of functions. We have studied functions quite a length, and we have implemented them, and we have seen that our next programming pattern or methodology would be everything in functions. We are taking the complexity out from the main, and we are implementing the complexity or the actual logic inside the functions or the modules. Though the approach was to divide and conquer, or in simpler words, if there is a complex problem, we have divided that problem into smaller modules. पीछे लोग आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएं, लास्ट 2-3 rows में इधर बिल्कुल खाली हैं. So actual methodology was to have a modular approach. Whenever there are modules, it means easier to manage, easier to handle the task. So whenever there is modularity, whenever there is software reusability. So if we just have a look at today's lecture outcomes, so we'll be studying passing of variables. We have seen passing of variable in a way that we have passed a variable to a defining function, copy of the variable to the defining function. The defining function updated the value of that variable, but we have seen the original variable was saved. We correlated this concept with a real world example. For example, if we have a book, you have a detail book or any subject book, your friend wants to study that book. So there are two options. Either you give him the original book. Second option requires some resources, isn't it? Time and cost. आपको कॉपी करने के लिए टाइम भी चाहिए और कॉस्ट भी इन्वॉल्व है उसमें. तो इसी चीज़ को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी जस्ट सिमुलेट करने की कोशिश करें, ये जो दो सिनारियोज हैं विच यू हैव जस्ट डिस्कस्ड, वेरिएबल्स की फॉर्म में किस तरह they actually holds true. We are talking about passing of variables. X has certain value, Y has certain value. X value was 2. We copied it and sent it to the defining function. So Y received the value as 2. Y made the value scared. So what is the updated value? 4. Original is saved, preserved, isn't it? Yes. So this is the case in which we have copied it, the contents, whatever the changes are, they are reflected over here, but the original is saved. Second scenario, you have the original book, you are not making any copy, you are saying come and read the same book, you are giving another name for this memory location. It is like this, you are not making any copy, you are giving access to the defining function with a separate name. So if Y is changing something, where it will be reflected? Same location. So 2 क्या हो जाएगा? 4. XB 4. Same location में दो नाम आ. Real world में, for example, this is CRC 11. अगर मैं इसका लेट से सपोज कोई और नेम लग के बाहर बोर्ड लगा दूं फॉर कंप्यूटर इंजीनियर और CRC 11 आपको मैं कहूं आप यू जस्ट कम टू दिस क्लास, यू विल कम ओवर हियर, isn't it? So for different programs we have different naming convention of the same location. Same as the case over here. X driven by the main function, Y the recipient function, which will utilize the same resource with the different name. So if you call X or Y, they are actually changing at the same area, and you display the content of X, it will be updated. We will just see both of these concepts happening practically in the very first topic, passing of variables, and then we will discuss, of course, passing of arrays, how a complete array can be passed. We are just talking about variables. What about array? You want to search something. A student from a hostel, you have the record of hostel in an array. How to do that? How to send the writes or make a copy of the array
Let's see, we'll discuss. Then of course character strings, almost similar to integer, but of course will have some different perks associated with it. And then of course further concept in the later portion of our lecture. So these are the two scenarios. Copy, we have get the copy of x and send the copy to y. This scenario is called call by value, which we are actually implementing, isn't it? अब हमने उसको formal name दे दी, which we are actually implemented in functions. You are passing the variables. You are passing under this head. You are passing call by value. Copy of the data passed to function. True? Copy, changes to the copy is not affecting the original. True. True? Prevent unwanted side effects. You don't want original to be changed. आप नहीं चाहते आपकी बुक खराब हो, आपने कॉपी की फ्रेंड को दी. Unwanted side effects. Call by reference. इसका एक और formal name है, and the name is call by reference. Function can directly access the data. Can you correlate that? X was the data. Now X has another name, Y. So function has the variable X. Main function has the variable X, which was passed to the defining function. Defining function defined Y, which is actually the recipient of X. In a way, we have managed in our programming methodology that they will both actually referring to the same memory location. So if we are making changes in any of these variables, X or Y, they are being reflected over here. You see out X, it will be 4. You see out Y, it will be 4. Same thing. So changes will of course affect the original, because you don't have any, you haven't spent any time in creating the copy. You haven't utilized any space in memory for that extra variable. So both of these scenarios इसको जरा practically देखते हैं in the form of example. But before that, ये जो x oblique y की है, ये हम किस तरह कर सकते हैं? इसका भी एक formal name है. It is called creating a reference. If x is a variable, how to create its reference? Real world scenario, again, you have your name, you have your nickname as well. You listen when you've been called with your nickname, isn't it? X का एक और nickname बन गया. Why? How to create that? Formally इसको कहते हैं how to create a reference of a variable. उसकी example. Interestingly, count value 1, find integer ampersand C reference equal to count. This is that equation or statement which makes another name for this variable count as C. उसका एक और नाम बन चुका. You increment C reference. You display count. क्या डिस्प्ले हो? हमने इसको एक और नाम बना दिया काउंट का C रेफरेंस. आपने C रेफरेंस को इंक्रीमेंट किया. ये कहाँ इंक्रीमेंट हुआ? ये इस वक्त 2 हो चुके. C out count 2. This is how we can create another name of a variable. This is how we are going to create another reference of a variable. Count equals to 1, C ampersand y equal to count C plus plus. Simpler words, C naming convention अगर हम simple रख लें, let's say x और y की form में, x has the value 2. We have just done that. Ampersand y equals to x. Another name has been created. Plus plus y. It becomes 3. C out x. 3. C out y. 3. क्या है? 3. Both are 3. This is how we are going to create another name of a variable. ये क्यों जरूरी है? Because we have to implement pass by reference. उसमें क्या pros and cons हैं, क्या चीज इंटरेस्टिंग है, वो अपकमिंग है एग्जाम्पल में. So let's start with the example. पहले रेफरेंस देख लें कैसे क्रिएट करते हैं. ये वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया है. x इक्वल्स टू
3 ampersand y equal to x, ये भी सेम चीज और ये सी आउट x क्या वैल्यू है जी x की, सी आउट y, y बिकम 7, सी आउट x, सी आउट y, ये आउटपुट देख लो, ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अनदर नेम ऑफ अ वेरिएबल. वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, while creating a reference it should not be dangling, means it should be initialized, line number 11, it should be initialized where it is declared, it should be ampersand y equal to x over here, otherwise it's a uninitialized reference, it's a syntax error. So that's why it states references must be initialized. So we have to keep check upon this. Whenever creating a reference with the ampersand sign, you have to equate it to the concerned variable, otherwise it will compiler will treat it as a uninitialized reference, dangling reference, means it is not reference of any variable. अब इन सब बातों को which we have just discussed, we want to summarize it in a program in which we will be implementing both the scenarios, pass by value and pass by reference, as the name is indicating in line number 9 and 10. क्या हो रहा है जी 9 और 10 में? मेन से ऊपर क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप. What the prototype is indicating us? That I will be creating a function square by value, who has, I will be giving input as integer or output as, and I will be creating another function square by reference, second method, जिसमें हम कॉपी नहीं क्रिएट करेंगे. I will be returned with what? Nothing. Void. It won't be returning anything. इनपुट पे आप क्या देंगे? एक रेफरेंस देंगे इंटीजर टाइप, जो भी हमने सीखे, उसका मेथड देखते हैं. बल्कि उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये x की वैल्यू थी समथिंग 5, इंटीजर ampersand y equals to x, isn't it? Yeah, this is how we create the reference. We come over here, x की वैल्यू 2, पहले पास द वैल्यू की बात कर लें. See out x, what is the value? 2. Line number 19, square by value, क्या वैल्यू जाएगी यहाँ? 2. कॉपी होगी, of course, कॉपी होगी, रिसीविंग वेरिएबल में रिसीव होगी. लेट्स सी उस वेरिएबल का क्या नाम है. कहीं किसी को समझ ना आए तो जरूर पॉइंट आउट करें. लाइन नंबर 33, रिसीव्ड बाय नंबर की क्या वैल्यू होगी? नंबर इक्वल्स टू नंबर क्रॉस नंबर, नंबर बिकम्स 4. रिटर्न इंटीजर. ओके, वी गो बैक. लाइन नंबर 20 में क्या, 21 में क्या डिस्प्ले होगा जी? 4. इधर क्या डिस्प्ले होगा? 4. इधर क्या डिस्प्ले होगा? 4. सर ऊपर 2 होगा, नीचे 4 होगा. मुझे बताएं x की वैल्यू कब 4 हुई है? देख के बताएं जी. लाइन नंबर 19 में, rather 20 over here, x square by value में क्या डिस्प्ले होगा? 4, जो रिटर्न हुई है वैल्यू. और एक्चुअल x क्या है? 2, which proves कि हमने कॉपी करके डाटा सेंड किया, ओरिजिनल अभी भी सेव्ड है. So first concept has been proven. Now let us have a look at second concept z, whose value is 4. इसके आगे चलते हैं. z की वैल्यू को हम सेंड करते हैं. लाइन ओके, बिफोर पासिंग इट टू द फंक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? 4. स्क्वायर बाय रेफरेंस z, तो z को हम सेंड कर रहे हैं
जी को हमने सेंड किया, लेट्स सी इसको रिसीव कौन सा वेरिएबल कर रहे हैं। लाइन नंबर 42 कौन सा वेरिएबल है जी? एम्परसेंड नंबर रेफरेंस। तो किसने रिसीव किया इसको? इंट एम्परसेंड नंबर आर दे इक्वल? जी पास किया, नंबर रेफरेंस रिसीव किया, तो कहना इसे नंबर रेफरेंस इज अनदर नेम फॉर जी। When I can say x, y is another name for x over here by establishing this contact, this connection, I have passed z received by number reference, so I can say number reference is another name for z. So if I make change in number reference, 4 equals to 4 into 4 16, तो कहां चेंज होगी? एक ही जगह। कुछ रिटर्न हो रहा है? वापस जाएं, जी को डिस्प्ले करें, क्या आएगा? विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ये है जी पासवर्ड। वापस जाएं, लाइन नंबर 26, सी आउट जी, क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी? बट वी हैवंट रिटर्न एनीथिंग बिकॉज वी हैव गॉट दिस वैल्यू स्ट्रेट फ्रॉम द मेमोरी। ये हमें एक और चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है, फंक्शंस की एक रिस्ट्रिक्शन है। We cannot use return more than once. We cannot return more than one value. आप यूज करके देखें, रिटर्न 1, रिटर्न, आपने एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करनी है, एक्स, वाई एंड जी, किस तरह रिटर्न करेंगे मेन को? नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू बैक टू द फंक्शन। यू कैन ओनली रिटर्न वन वैल्यू। या आप इफ एल्स में यूज कर दें, रिटर्न दिस और दिस, रिटर्न एक ही वैल्यू होगी। हाउ टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन? पास बाय रेफरेंस। अभी जो पढ़ा, कोई वैल्यू आपने रिटर्न की है? एक्चुअली नहीं, स्टेट मेमोरी से रीड हुआ। इसको एक्सपेंड करें जरा। लेट्स सपोज लाइन नंबर 10 में आप लिख रहे हैं इंटीजर एम्परसेंड कॉमा इंटीजर एम्परसेंड कॉमा इंटीजर एम्परसेंड, तो कितने इंटीजर हो गए? 3। ये देखिए, अगर आपने जी के साथ ये क्रिएट किया तो एक ए वेरिएबल क्रिएट करें, उसके साथ डी उसका निकनेम क्रिएट करें। सी वेरिएबल क्रिएट करें, उसका डी उसका निकनेम क्रिएट करें। सारे वेरिएबल्स को आप अपडेट कर सकते हैं या नहीं? और मेन में उसको असेस कर सकते हैं या नहीं? लाइक दिस। यस सर। This is how we can return more than one value from a function. Pass by value में we cannot return more than one value. That's why we have to shift towards pass by reference. Pass by reference, actually, essence of pass by reference is directly accessing the data from the memory. कोई कॉपी नहीं बनी, एक दफा डाटा क्रिएट हो गया जो मेन में, उसी डाटा को असेस कर लें। n नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्रिएट करें, सबको असेस कर लें फंक्शन से, रिटर्न ना करें वो फंक्शन में, तब भी बैक मेन में वो भी एक्सेसिबल हो, क्योंकि मेन के पास उसका नाम है ए, आपके पास क्या है? फंक्शन के पास मेन में क्या? सी। आप किससे मैनिपुलेशन कर रहे हैं? डी। तो जब आप डी पे मैनिपुलेट कर देंगे और फंक्शन में सी को डिस्प्ले करेंगे तो वो अपडेटेड वैल्यू। इसी को अब मैं स्केल करूं कि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वेरिएबल को पास करना। एक्चुअली तो रियल वर्ल्ड सिनारियोज में एरेज हैं, आपका डाटा सेव्ड है, एक वेरिएबल तो नहीं है, आपका पूरा रिकॉर्ड सेव हुआ है किसी भी फॉर्म में। आप कह लें कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके हॉस्टल का रिकॉर्ड है, उसमें रूम नंबर्स हैं और उसमें रोल नंबर्स हैं सेव हुए कि ये बंदा हमने ढूंढना है जी, इस हॉस्टल में वो है या नहीं, अगर है तो किस रूम में। एरे बन सकते हैं ना ऐसा। और आप कहते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा सर्च। उस सर्च फंक्शन को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? आपने मेन में एक एरे क्रिएट की है ऑफ 100 एलिमेंट्स, पॉपुलेट भी हुआ है। आपने सर्च फंक्शन को किस किस चीज के राइट्स देने हैं कि वो सर्चिंग
प्रोसीजर परफॉर्म कर सके। क्यों जी? एनी आइडिया? लेकिन सबसे पहले तो उस बंदे के क्रेडेंशियल्स बताए ना जिसको ढूंढने। सर्च की, एरे और उसका साइज, आई थिंक दीज आर द 3 पैरामीटर्स, इजंट इट? अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है, हमने यहां वेरिएबल्स को तो देख लिया, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। अगर एक 100 एलिमेंट्स का एरे है, उसकी आप कॉपी बना के भेजेंगे फंक्शन को, और उसी तरह आपके पास कई एरे हैं, 5 एरे हैं लेट से 100 एलिमेंट्स के, सबकी कॉपियां बन रही हैं, तो आपका प्रोसेसर तो कॉपियों में ही जी। तो एरेज में पास बाय वैल्यू अलाउ ही नहीं है। एरेज को जब आप फंक्शन के राइट्स देते हैं, एरेज आर बाय डिफॉल्ट पास बाय, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स एरे अगर एक दफा क्रिएट हो जाए, उसकी कॉपी नहीं बनती, उसकी एक्सेस दी जाती है। अगर एक एरे है, इसमें आपके पूरे हॉस्टल का रिकॉर्ड है और उसका नेम है ए, तो इसकी एक और एरे क्रिएट नहीं होगा और फंक्शन को कहा जाएगा आप उसमें सर्च करें, बल्कि इसका एक और नाम क्रिएट कर दिया जाएगा विच इज ए बाय बी। वो एज अ बी इसको सर्च करे और आपको रिकॉर्ड आता है। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, आपके पास तो सेंसिटिव डाटा है, हॉस्टल का रिकॉर्ड है 0 1 2 3 और आगे रोल नंबर्स, आप फंक्शन को सर्च दे रहे हैं, फंक्शन को तो सिर्फ रीड ओनली की सर्च होनी चाहिए। ये मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, ओनर तो नहीं, सर्च की सर्च होनी चाहिए ना, उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं सर लोग? तो आप इसको फिक्स करके फिर सेंड करेंगे जी। पहले तो हम देखते हैं एरे किस तरह पास करते हैं। एक चीज तो डिसाइडेड है, एरे की कॉपी नहीं बनेगी। एरेज आर बाय डिफॉल्ट पास बाय रेफरेंस, जो भी एरे क्रिएट होगा उसकी एक्सेस दी जाएगी फंक्शन को। वन थिंग, हाउ टू पास एन एरे, सेकंड थिंग, एंड थर्ड थिंग, हाउ टू फिक्स एरे टू मेक इट रीड ओनली। इन तीनों के आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक ही लाइन पे मिल देंगे जी। आप सर्च परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लाइन नंबर 9 देखेंगे। यू आर नरेटिंग द कंपाइलर दैट आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ सर्च विच विल एक्सेप्ट एन इंटीजर एरे। कांस्टेंट को छोड़ देंगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द प्रोटोटाइप। जब आपने फंक्शन को राइट्स देने एरे के, आई विल बी पासिंग एन एरे, किससे पता लग रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। और ये जो 2 इंटीजर एक्स वाई ये क्या है? अभी हमने बात की थी कि अगर आपने कोई चीज सर्च करनी है तो ये जो एरे पास कर रहे हैं इसका साइज भेज दें, और जिसको सर्च करना होगा ये 3 चीजें आप भेजेंगे, वापस रिटर्न क्या होगा? वो कौन सा इंटीजर होगा? रोल नंबर 9 हमने सर्च करना था, क्या वो आपको एरे में मिल जाना चाहिए? ये इट इज देयर इन लोकेशन 3, ये 3 रिटर्न होगा। लोकेशन उसकी क्या है? कंटेंट अगर मैच हो गया तो उसका रूम नंबर क्या है, तो उसकी लोकेशन रिटर्न हो रही है। ये एक्चुअली 3 है। हम इसको ये कह सकते हैं जो स्टूडेंट यहाँ है नहीं, आप सर्च कर रहे हैं रोल नंबर 6 को, तो क्या रिटर्न होगा? तो हम ये कहते हैं या तो ये एक इंटीजर रिटर्न होगा इनमें से कोई, या -1 रिटर्न, आइदर फ्रॉम 0 till द कैपेसिटी ऑफ द एरे, और वो हम प्रोग्रामिंग में भी देखते हैं कि किस तरह इसको सेटल करते हैं। मगर ये तमाम चीजें हमने एक लाइन में समराइज करते हैं। आपको नजर आ रहा है सब कुछ, ये एक एरे पास होगा। वेरी सिंपली ये एरे क्रिएट हुआ कांस्टेंट इंटीजर के साथ, सर्च की आपने यूजर से लेनी जिसको सर्च कर रहे, एरे को पॉपुलेट कर रहे, a of i equal to 2 into i,
पूरा एरे आपका डमी वैल्यूज के साथ आ गया। लेट्स सपोज हमने खुद से क्रिएट किया, यूजर को प्रॉम्प्ट की, सर्च की, वो ले ली, सर्च की, क्या हमारे तीनों रिक्वायर्ड पैरामीटर्स फुलफिल हो चुके हैं? वेयर इज एरे? नेम ऑफ द एरे, नेम ऑफ एन एरे ए, पास कर दें, ए लिख दें, जस्ट एरे पास हो जाए, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नाम लिख दें। अगला इंटीजर क्या सेंड करना था, और उससे नेक्स्ट, तो ये तीनों इंटीजर आप किसको सेंड कर रहे हैं? लीनियर सर्च फंक्शन। इन तीनों इंटीजर्स की, एक्चुअली तीन इंटीजर्स तो नहीं है, एक तो एरे और दो इंटीजर, मींस यू आर पासिंग एन एरे ए, a search key and size to the defining function. From here, your control from line number 24 will go to line number 39. अच्छा, एक और चीज इसमें थी कि आपने फिक्स करके एरे को सेंड करना है। आपने देखा प्रोटोटाइप में कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट हम इसलिए करते हैं ताकि जो डिफाइनिंग फंक्शन है ये एरे के कंटेंट्स को चेंज ना कर सके, सिर्फ रीड कर सके, राइट ना कर सके। एरेज आर पास बाय रेफरेंस। आप चाहते हैं आपका सेंसिटिव डाटा है, एक तो बेस्ट तो यही था, आप सोच रहे हैं कि कॉपी बना के एरे की भेज दें, आपको पता लगा कॉपी तो बना ही नहीं सकते, तो उसको फिक्स किस तरह करें? फिर एक ही एरे है, उसको फिक्स करने के लिए कांस्टेंट लिख दें। अब वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो डाटा इज सिक्योर्ड, इट इज फॉर व्यू ओनली, इट इज नॉट एडिटेबल। तो ये कांस्टेंट इंट एरे ए को किसने रिसीव किया? अब ये एरे क्या है? इट्स अनदर नेम फॉर ए। देख लो, जिस तरह वेरिएबल का एक और नाम था, एरे का भी एक और नाम आ चुका है, आपने खुद क्रिएट किया। साइज को किसने रिसीव किया है? सर्च की को, सॉरी की ने। साइज को किसने रिसीव किया है? साइज ऑफ एरे। तीनों चीजें हमारे पास आ गई। एरे में सर्च लगा दें, लूप j इक्वल टू 0, j इज लेस देन व्हाटएवर द 100 था। पूरे एरे में चेक करें क्या एरे ऑफ 0 सर्च की के इक्वल है? सर्च की लेट्स से ये नाम पे उदाहरण लेट्स से 9 है। क्या एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0, ए ऑफ 0 नहीं, एरे ऑफ 0, इट्स सेम थिंग, एरे ऑफ 0। If it is a of 0 or it is array of 0, it means this will be. Oblique the other. Yes. If array of 0 is exactly equal to key, true or false? False. False. Key क्या है? 9. False. आगे चलिए. J becomes 1. Array of 1, false. 2, false. 3, true. Return 3. लेट्स सपोज 6 था, पूरे एरे सर्च कर लिया, नहीं मिला, क्या रिटर्न हो गया? -1 आ जाएगा। तो आइदर द लोकेशन और -1। जस्ट टू गिव द हिंट, बैक हम उस वेरिएबल पे चेक लगाएंगे कि अगर वो -1 नहीं है तो बता दें स्टूडेंट इस रूम में, अगर वो -1 है नॉट फाउंड। अब यहां से आप वापस चलें, क्या चीज वापस जा रही है यहां से इन दिस सिनेरियो? क्या एलिमेंट नंबर है जी? 3। हमने क्या, ये 3 रिटर्न जे, ये 3 पे आपको 9 मिल गया, ये 3 रिटर्न हो गया, यहां से 3 वापस जाएं। 3 को रिसीव कौन कर रहा है? एक वेरिएबल है एलिमेंट। तो इफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू -1, इसका क्या मतलब है? मतलब स्टूडेंट हैज बीन सर्च्ड, सी आउट एलिमेंट। इफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू -1, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सी आउट, वैल्यू फाउंड इन लोकेशन
एलिमेंट। और अगर आपके पास हुआ जी 3 पे आपको 9 मिल चुका है, आपने एक सर्च फंक्शन बना दिया जेनेरिक, अब आपने कोई भी चीज सर्च करनी हो, एरे साइज और उसकी सर्च की उस फंक्शन को भेज दी, बार बार आपको सर्चिंग का प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर वो स्टूडेंट नहीं है अवेलेबल एरे में तो क्या रिसीव हुआ, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, एल्स वैल्यू नॉट। So this is how you have actually also completed array searching implemented in a function. We have seen how to pass variables. We have seen how to pass an array. It is very simple, just by writing name of the array. What is inside name of an array that is that powerful that complete 100 length array has been passed? I'm just quoting my question again. What is inside the name of an array? We have seen that we have said that passing name of an array means you have passed the complete array. देखिए कंसेप्टिव लोकेशन है ना, कोई ईएमई के गेट पे आ जाए, आप तक आ सकते हैं, डिपार्टमेंट्स तक आ सकते हैं, गेट सेंटर हो गए, फर्ज कर लेना 0 पे आ गए हैं तो 1 पे तो आ ही जाएगा ना। आप बेशक 4 में हैं तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, कहां पे एड्रेस, गेट पे। अगर आप 0 पे आ गए यू कैन असेस द कंप्लीट डेटा, इज इट राइट और नॉट, राइट सर। सो द कंटेंट ऑफ ए इज एड्रेस ऑफ 0। एरे के नेम में एक्चुअली 0 का एड्रेस होता है, इसमें भी एक्चुअली वही है, इसलिए हम कहते हैं पूरा एरे पास हो गया, चाहे वो 100 एलिमेंट्स का 500 एलिमेंट्स का, स्टार्टिंग एड्रेस एरे पास। कंसेप्टिव किसी भी जगह आप कोई कॉलोनी में जाएं, आपने घर असेस करना, आप गेट पे आ जाते हैं, इधर आप जाएं, मतलब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जस्ट टू कोरिलेट। क्यों जी, इंटरेस्टिंग। ये देखिए फंक्शन जो है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट की वजह से वो टफ वगैरह सारा भूल जाते हैं। ये आप देखें ना, हाँ वो मैंने दिया ना आपको, आपने देखा नहीं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 आ रहा है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 नेक्स्ट वीक अपलोड हो जाएगा। 3 भी आ रहा है, 2 में भी आप करें, 2 में सॉल्यूशंस भी हैं, 2 में भी सॉल्यूशंस। यार इतने ही होते ना आइडिया देने के लिए, ठीक है। और 3 में भी आ रहे हैं, हाँ जी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है बिल्कुल।